इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone. With a great hope that everybody is safe and sound at their respective place, we Franchise India teams welcomes you to our webinar series. We welcome each one of you to 299th edition of Business Opportunity Over Chai webinar series. This is a digital representation of the brand and the business opportunity we have got for you. If I talk about Franchise India, Franchise India is 23-year-old business consulting company which facilitates suggestions on different business opportunity for each one of you so that you take a conscious and right decision of selecting the right business for you and your family. And we truly claim that no one sells more business than us because we have helped more than 5,000 brands in expanding their business with our 80 plus offices. And we have helped more than 78,000 investors in getting the business suggestions from our site. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. This particular webinar is hosted by both of them. Once we'll get a correct and complete understanding about the business model of the brand of the day, they'll be sharing their insights, suggestion with each one of us. But before that, I would like to invite and welcome Sonia ma'am because she is there to help us about 2 different programs we got for you. One is IA and second one is the small gift token from our side in case you seal the deal with us within these dates. So thank you so much, Sonia ma'am. Thank you so much, Gaurav sir, for joining in. Over to you, Sonia ma'am. Thank you so much, Arshna. And thank you, Vijayji, for coming on this webinar and welcome all our, I would say, panel members who are here and also all the investors who have joined on this webinar today. And friends, there are 2 things which I wanted to maybe quickly mention before we started the webinar. And so, one, we have this investor advantage program that we started in the month of December. And this was a initiative that we took, in the month of December when we realized there were a lot of events that we did, in fact, the entire year, and investors were looking at opportunities, but also they wanted a guidance and they wanted a guided assistance in helping them in the entire business buying process. And this is the program that we launched. And through this program in the year 2020-21, we were able to assist and help more than 954, I would say, business buyers who took this advantage program through us. And we recruited and appointed
our advisors who worked with each of our investors and helped them buy a business opportunity. And this is a program which is for a period of 6 months, where our teams would work, including our independent franchise consultants in about 80 cities, who work very effectively and very closely with each investor in help them diagnose their interest based on their risk appetite, based on the investment they want to make, based on maybe their interest, experience, and also the opportunities or industry at large, and also bring in a lot of industry and brand knowledge and experience to each one of you. It's a program of 6 months with a registration fee of 15,000. And if you're keen to look at this, you can reach on the hotline number that we'll put in the Q&A box. You can reach and we'll help you with the information that you wish to see. And the other is initiative that we took during Navratras, which is a 9-day, which we conclude tomorrow. Any business buyer who takes any opportunity through Franchise India in these 9 days on any business across the country, we would gift a 100-gram silver coin on any deal that you would conclude. So anyone who has done so far can reach out to us. And for everybody else, between today and tomorrow, we have 2 more days that this offer is extended to each one of you. And before I invite, I will also request Mr. Maria to maybe say and address all of you, and then we can formally commence with our webinar. Thank you, Sonia. Welcome, friends, and welcome to another edition. This has been a year-long effort by Franchise India team, a huge effort, because we have been doing this for over 365 days now. Every single day at 12 o'clock, we bring an opportunity. But it's also very important at this stage for you to make a right decision what business you want to buy. And that's why this program was designed. This gives you an opportunity to go through a full 1 hour about the opportunity, about the founder, about their industry, how they're growing, and also in detail financial model which needs to be done. And over than that, as Sonia said, our consultants are available in 85 cities, which can assist you making this decision of what business you want to buy. And we just don't help you to buy a business, but we then help you to really get started with that business. That hand-holding goes for a couple of months, from selecting your right real estate, helping you to even organize the right funding. We are tied up with a lot of funding organizations to help you even to secure some loans if you want to do that. So I will strongly encourage you to become a member with our Advantage program, and also go through the full library of opportunities we have. So I will not like to hold more, because Vijay is already there and he's ready to share his opportunity, which is very interesting. And you go out to Q&A box, start asking your questions. I and Sonia would keep taking these questions on behalf of you with Vijay post the presentation is done. So over to you, Vijay, for your presentation and getting started. Thank you very much. Thank you so much, Gaurav sir. Thank you so much, Sonia ma'am, for starting the webinar. विजय सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं for this particular webinar. We would like to welcome you. And friends, if I talk about Lakshmi Medicos, they enjoys 50 years, glorious 50 years of legacy in health sector. Lakshmi Medical Store is most renowned name in this particular vertical. But before we invite Anshul to have a formal presentation from his side, we would like to invite Vijay Bhai to talk about his journey. So thank you so much, Vijay sir. आज हमें join करने के लिए, over to you to share your journey with us. Thank you, Archana. Can you listen me? Yes, sir. Thank you so much. Okay. Okay. So I would prefer to speak in Hindi, as I feel the most of the people joining the webinar from Chhattisgarh or North India. So if everybody is comfortable, I would like to share my views in Hindi. So लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स की जर्नी जो है 1970 मार्च 1970 में मेरे बड़े भाइयों ने मिलकर शुरू की थी। एक छोटा सा मेडिकल स्टोर किराए की दुकान पर लेके हमने स्टार्ट किया था शास्त्री चौक रायपुर में। आज 51 साल हो गए हैं। 51 साल में जो हमने रेपुटेशन गेन की है, सब उसको अगर 3 शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो सही दवा, सभी दवा, सही दाम, ये हमारा मुख्य वाक्य है। कि हमारे यहाँ जब कस्टमर आता है लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में जब आता है, तो उसके मन में ये विश्वास पक्का रहता है कि यहाँ जो दवा मिलेगी वो तो 100% जेन्युइन मिलेगी। तो ये भी पता रहता है कि यहाँ सारी दवाइयाँ मिलेंगी। और उसके बाद 40-45 साल तक हमने इसको स्टैंड अलोन बिजनेस के रूप में चलाते रहे, एक मजबूती देने के हिसाब से।
2015 में हमने इस बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान किया। 2015 से हमने 3 ब्रांच से स्टार्ट किया। आज हम टोटल 12 ब्रांचेस हैं रिटेल की हमारे रायपुर में, एक भिलाई में ब्रांच है, और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी है जिसमें करीब हम लोग 45-50 कंपनीज को हम डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हमारा है। इसके अलावा हमारे कुछ बिजनेसेस और भी हैं जिससे हम एजुकेशन फील्ड में भी हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। टोटल जर्नी जो है हमारी 1970 से जो चालू हुई, आज 51 साल हो गए, जिसको हमारे बड़े भाइयों ने शुरू किया था, उसको आज मैं और मेरे दोनों बेटे इसको आगे ले जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे रिनॉन्ड ब्रांड अगर बोलेंगे फार्मेसी में मेडिकल स्टोर, तो लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का ही नाम आता है। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं चाहूंगा कि अंशु जी प्रेजेंटेशन दें। आगे जो क्वेश्चन आंसर में होंगे तो मैं बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। थैंक यू विजय जी। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। राइट, so good morning investors, good morning friends, partners and my colleagues. So this is a presentation on Lakshmi Medical Store, as Vijay ji mentioned. छत्तीसगढ़ का बहुत ही prominent, बहुत ही established pharmacy brand name, and इसके बारे में हम बात करेंगे अब इस presentation में। इस presentation में हम लोग 3 सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 1 लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, विजय जी ने ऑलरेडी इसके ऊपर अपने जर्नी के बारे में बताया हम, प्लस फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी, कैसे एक फार्मेसी ब्रांड में फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है इंडिया में आज की डेट में, एंड फाइनली अपना फ्रेंचाइज प्रपोजल, कैसे आप इस ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स। जैसे विजय जी ने बताया, 50 साल से ये कंपनी 1970s में स्टार्ट हुई, और आज की डेट में इनके 12 रिटेल स्टोर्स हैं, एक भिलाई में है and 1 distribution center in Raipur. So maximum availability of medicines, surgical products, vaccines and specialized medicines. You know, सही दवा, सारी दवा और सही दाम, ये जो एक वाक्य विजय जी ने दिया है स्टार्टिंग में, बहुत ही सही है और ब्रांड को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जो आज की डेट में ब्रांड एक इमेज कैरी करता है एक आम आदमी के लिए, एक आम कस्टमर के लिए, एक एज अ फार्मेसी रिटेल ब्रांड, राइट। So this is very briefly in terms of the brand about us. Lakshmi Medical is currently one of the leading retail chains in pharmacy in Central India. You know, mission to deliver the highest medicine and very cost-effective services. Vision to also become first choice of home medical equipment भी एक बहुत important category है जो कंपनी आज की डेट में ऑफर कर रही है रायपुर में, and of course absolute focus on quality. ठीक है। Another important service is home delivery in Raipur. So through mobile app, website, telecalls at the store, so customers ये home delivery के लिए order कर सकते हैं directly at the stores, right? So this, इसके साथ ही हम अपने सेकंड सेक्शन पे जाते हैं, फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी। हम ब्रांड के बारे में बात करेंगे आगे भी और कुछ स्लाइड्स में, और मैं विजय जी के भी ओपिनियन जानना चाहूँगा बीच बीच में। तो फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें तो फार्मेसी इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया में इंडस्ट्री अगर देखें तो तकरीबन 8 से 9% के 8-9% के रेट से ग्रो कर रही है। बट अगर हम ऑर्गेनाइज फार्मेसी रिटेल की बात करें, so this is growing at 30%. So you can see the opportunity here. Organized pharmacy retail ये तकरीबन 30% से ग्रो कर रही है। मार्केट आज के डेट में बहुत फ्रेगमेंटेड है, तो आप देखेंगे कि हर एक रीजन में कोई एक प्लेयर ऐसा है जो एक अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं, कुछ प्रेजेंस है। जैसे ईस्ट इंडिया की बात करें या छत्तीसगढ़ रीजन की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स
12 stores already, 1 distribution center. So बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस रीजन में क्रिएट कर लिया है ब्रांड, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन फार्मेसीज एंड स्टेट वाइज नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। सो दिस इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइज, बट ये आपके दोनों तरह के हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज फार्मेसी। इसमें अगर आप छत्तीसगढ़ का नंबर देखें तो एक हमने बेंचमार्क पैरामीटर लिया जो कि था डेंसिटी ऑफ फार्मेसी स्टोर्स, और छत्तीसगढ़ में आज की डेट में ये एवरेज आती है तकरीबन 3000 पीपल पर स्टोर। जबकि अगर कंपैरेटिव देखें वेस्ट बंगाल को, तो वेस्ट बंगाल इज 1100 पीपल पर स्टोर, एंड महाराष्ट्र जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है एंड हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट है, वहाँ पर ये एवरेज 550 की है। ओवरऑल अगर इंडियन एवरेज में देखूं तो ये 1350 पीपल पर फार्मेसी स्टोर की एक एवरेज इंडिया में आती है, बट छत्तीसगढ़ में ये एवरेज 3000 की है। तो इसी पॉइंट से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अगले 5 साल 10 साल में छत्तीसगढ़ स्टेट में हम इस एवरेज 3000 को लेकर हम 1500 पे जाएं या 1000 पर जाएं, तो ये 9700 का स्टोर काउंट देख रहे हैं, ये बढ़ के 25,000 30,000 पे जाना होगा अगले 5 साल 10 साल के पीरियड में, विच मीन्स कि छत्तीसगढ़ itself presents a definite scope of adding another 10,000 stores over next let's say 10 12 15 years, right? साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में और कैसे ये डायनेमिक्स चेंज होगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 साल में तकरीबन 10,000 स्टोर फार्मेसी के ऐड हो सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इटसेल्फ, प्लस जो दूसरी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, बिहार, एंड दिस साइड इफ यू सी मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर सभी स्टेट्स में ऐसे ही डायनेमिक्स आपको नजर आएंगे कि कहीं पर 5,000, कहीं पे 7,000, कहीं पर 3,000। सो ओवरऑल अगर देखें तो सेंट्रल इंडिया में easily, if not more, easily 25,000-30,000 pharmacy stores to be added over next 10 years. So that's a great opportunity to look at. Organized pharmacy stores आज की डेट में अगर आप देखें तो कस्टमर भी कोशिश करते हैं कि वो एक बेटर शॉप से फार्मेसीज खरीदें, थोड़ा सा ब्रांड ट्रस्ट होता है, अश्योरेंस होती है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स की कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लस जो फार्मेसिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो भी नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो दे कैन ऑल्सो एडवाइज यू बेटर। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी स्टोर्स की डिमांड मार्केट में बन रही है, एंड फ्रॉम नंबर्स ऑल्सो इफ यू सी नेक्स्ट 10 years सेंट्रल इंडिया विल नीड अबाउट 20,000 फार्मेसी स्टोर्स टू कम इन। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रही है। The same we have captured on the next slide, few numbers जो next 5 साल में हमने देखा कि तकरीबन 6,000 स्टोर्स छत्तीसगढ़ में चाहिए होंगे। अभी अपॉर्चुनिटी को कैसे कंपटीशन एड्रेस कर रहा है? कंपटीशन हैज अडॉप्टेड फ्रेंचाइजिंग एज अ रूट फॉर क्रिएटिंग दिस नेटवर्क ऑफ रिटेल फार्मेसीज। अब कंपटीशन में अगर आप देखें अपोलो फार्मेसी ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी चेन है, तकरीबन 3,000 प्लस स्टोर्स हैं उनके, बट सभी स्टोर्स कंपनी ओन्ड है, वो फ्रेंचाइज में नहीं जाते। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो संजीवनी, मेड प्लस, मेड लाइफ जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू हुए थे एंड नाउ दे आर गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजिंग। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज चाहे वो ऑफलाइन से शुरू हुई जैसे संजीवनी है या मेड प्लस या मेड लाइफ हैं, जो ऑनलाइन शुरू हुए थे आज स्टोर्स में आ गए हैं। इनफैक्ट नेट मेड्स इज ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट। So, सभी कंपनीज जो फार्मेसी में हैं दे आर ऑल नाउ कमिंग इनटू स्टोर फॉर्मेट एंड फ्रेंचाइज फॉर्मेट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि जैसे कंपटीशन ने अडॉप्ट किया, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर भी एक फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल पर ही जाएंगे। फ्रेंचाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट करते हैं स्टोर में और आप ही उसके ऑपरेशंस भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी इसमें आपको सपोर्ट करती है फ्रॉम प्रोडक्ट सप्लाईज, फ्रॉम मार्केटिंग, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। वो हम डिस्कस करेंगे अभी अगली कुछ स्लाइड्स में। ठीक है,
इस मॉडल में और एक चीज़ हमने ये देखी कि कंपटीशन जैसे कर रहा है, सेम लाइंस पर कंपनी भी आउटराइट सेल मॉडल पर ही फ्रेंचाइज ऑफर करेंगी, विच मीन्स आप मेडिसिन, OTC प्रोडक्ट्स और जो भी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं आप कंपनी से पहले खरीदते हैं कुछ मार्जिन पर और फिर उसको आप आगे सेल करते हैं मार्केट में। इसमें ऑफ कोर्स आपको स्टॉक करेक्शन या स्टॉक रोटेशन वो सब सपोर्ट आपको मिलेगी। कंपनी आपको पूरी सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, स्टॉक सप्लाईज, कुछ करेक्शन करना है तो वो सब सपोर्ट आपको कंपनी ऑफर करती है। इसमें क्या मार्जिन रहेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, अभी हम अगली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। सो फर्स्ट कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, तो आज की डेट में अगर आप देखें तो कस्टमर को चैलेंज क्या होते हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें उनको या तो प्राइसिंग ठीक नहीं मिलती या फेक मेडिसिन हैं, जगह जगह भटकना पड़ता है अपनी मेडिसिन इकट्ठी करने के लिए। सो ये सारी जो चैलेंजेस कस्टमर फेस कर रहा था आज की डेट में, वो लक्ष्मी मेडिकल स्टोर ने एक जगह पर सब चीज़ें ऑफर करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, विच मीन्स एक लो कॉस्ट मेडिसिन आर अवेलेबल, जेन्युइन प्रोडक्ट, जैसे विजय जी ने स्टार्टिंग में बताया, फोकस ऑन जेन्युइन प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हम लेके आ रहे हैं। हाई क्वालिटी मेडिसिन, लास्ट माइल डिलीवरी जो कि होम डिलीवरी सर्विस की बात कर रहे हैं, एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि उनको सही दवा, सारी दवा और सही दाम, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर कस्टमर के जो चैलेंजेस थे वो हमने एड्रेस किए। On similar lines, value proposition against competition, competition भी हमने दोनों तरह से देखा, ऑफलाइन फार्मेसी स्टोर्स एंड कुछ ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर्स जैसे नेटमेड्स, मेडलाइफ एंड द लाइक्स, राइट, 1mg, ऐसे कुछ ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर्स भी हैं। सो इनके कंपैरिजन में कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है वो हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। सो नॉट ओनली मेडिसिन, कंपनी के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, ब्रांडेड मेडिसिन हैं, कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, OTC रेंज है। सो एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है कंपनी का, जो आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर की कुछ भी डिमांड है तो वो हम सर्विस कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज द डिस्काउंट फैक्टर, थर्ड इज ऑफ कोर्स जेन्युइन मेडिसिन एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। तो कंपनी इंश्योर करेगी कि आपको always you get the best quality medicines, genuine medicines, right? ट्रेनिंग टू फार्मेसिस्ट, आपके जो स्टोर पर फार्मेसिस्ट रहेंगे, जो आपका स्टाफ रहेगा, उनके लिए ट्रेनिंग, पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, मेडिसिन को लेकर, कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर डीलिंग, बिलिंग, सभी जो प्रोसेसेस एक फार्मेसी में हो सकते हैं उन पर डिटेल में ट्रेनिंग दी जाएगी आपके स्टाफ को, राइट। एक ब्रांड ट्रस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज फार्मेसी के बिजनेस में। कंपनी जो 50 साल से रायपुर में एस्टैब्लिश्ड है, अपने 12 स्टोर्स चला रही है, एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर कंपनी ने बिल्ड किया है छत्तीसगढ़ स्टेट में, सेंट्रल इंडिया में। सो ये एक आपको एडवांटेज मिलता है। एंड ऑफ कोर्स होम डिलीवरी सर्विसेज जो अभी हम शुरू कर चुके हैं, सो वो भी एक एडवांटेज आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है अगेंस्ट द कंपटीशन। ऑन सिमिलर लाइंस, व्हाट इज द बेनिफिट टू यू नाउ एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर? आपके लिए क्या बेनिफिट कंपनी लेके आ रही है? जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग, आपके स्टाफ को आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैसे आप स्टॉक अपना मैनेज करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट स्टोर में रखना है, कौन सा नहीं रखना, कैसे वो स्टॉक मिक्स ऑप्टिमाइज हो ताकि आपकी सेल्स मेंटेन रहे, तो उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्जिन्स, बेटर रेपुटेशन, एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, OTC रेंज हुआ, इक्विपमेंट हुआ, रिटेल प्रोडक्ट्स हुए, तो वो एक मिलता है। ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग, सो फर्स्ट 2-3 मंथ्स कंपनी आपके साथ बिल्कुल जुड़ के काम करेगी, ताकि आपको कोई भी इनिशियल चेंजेस, इनिशियल चैलेंजेस बिजनेस सेटअप करने में और स्टार्ट करने में वो चैलेंजेस ना हो, ठीक है। एंड देन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, शॉपिंग एक्सपीरियंस, डिस्काउंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, वो सब कंपनी इंश्योर करती है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है ये. आई विल अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट. आपको देखना ये है कि ये कंपनी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, 50 साल का इनका एक्सपीरियंस, आज 12 स्टोर अपने चला रहे हैं रायपुर में, भिलाई में. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है रायपुर में, जिससे पूरे सेंट्रल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. फोकस ऑन जेन्युइन प्रोडक्ट्स, बेटर मार्जिन्स, एक ब्रांड ट्रस्ट है मार्केट में जो कंपनी का नाम है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आज की डेट में. अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो कस्टमर भी अपनी मेडिसिन एक ऐसे ही शॉप से लेना चाहेगा जहाँ पे उनको भरोसा हो. सो उन पैरामीटर्स पे लक्ष्मी मेडिकल स्टोर इज द टॉप नेम इन द स्टेट, इन द रीजन. ठीक है जी. सो लास्ट सेक्शन आर फ्रेंचाइज प्रपोजल, और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए, मार्जिन्स के लिए, एंड दूसरे सपोर्ट फंक्शंस क्या कंपनी आपको देगी. सो इन टर्म्स ऑफ रोल आउट प्लान, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया, छत्तीसगढ़ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टेट में, एंड देन ओवरऑल ईस्ट इंडिया रीजन, एंड देन फेज 2-3 will be going outside of East India, slowly getting into West, Central and West, and then to Pan India regions, right? From a franchisee, अब franchisee से कंपनी चाह रही है कि आप एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट रिटेल स्टोर बनाएं. इसमें दो तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं. वन कुड बी अ न्यू फार्मेसी सेटअप, कि आप एक नया फार्मेसी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स के नाम से नई शॉप आप डेवलप करें. दैट कैन बी वन अपॉर्चुनिटी. सेकेंड कुड बी कि अगर ऑलरेडी आप एक रनिंग फार्मेसी स्टोर हैं, राइट, और आपको लगता है कि शायद ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में आपको बेनिफिट होगा बिकॉज उनका नाम है, प्रोडक्ट्स हैं, प्राइसिंग है, तो वो बेनिफिट आप ले सकते हैं बाय कन्वर्टिंग योर सेल्फ टू लक्ष्मी मेडिकल स्टोर. तो दोनों अपॉर्चुनिटी हैं. नया सेटअप भी हो सकता है, एंड सेकंड, अगर आपकी रनिंग फार्मेसी आउटलेट है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर मार्जिन्स, ब्रांड ट्रस्ट, प्राइस पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट मिक्स. सो वो सब बेनिफिट्स आप ले सकते हैं. ठीक है जी. Coming to financial, I think very important slide again. So company लोग देख रही है यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट का बहुत ही एफिशिएंट मॉडल कंपनी ने डिजाइन किया है. कंपनी के अपने जो आउटलेट हैं वो बड़े फॉर्मेट में भी हैं, 800,000 स्क्वायर फीट फॉर्मेट्स में भी हैं, बट फ्रेंचाइजीज के लिए कंपनी प्लान कर रही है 400-500 स्क्वायर फीट, वेरी एफिशिएंट मॉडल. शॉप मिलना भी आसान होता है, रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी इज देयर, और इस फॉर्मेट में आपके तकरीबन 30 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आती है, विच मीन्स जिसमें से 17-18 लाख रुपए का स्टॉक है, 4-4.5 लाख रुपए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, 1 लाख रुपए इक्विपमेंट एंड 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइज फी. दिस 5 लाख रुपए प्रोविजन एंड डिपॉजिट्स, ये आपके रिफंडेबल अमाउंट होती है जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है लीज का, प्लस सम वर्किंग कैपिटल प्रोविजंस. सो वो 5 लाख रुपीज़ आप दैट्स लाइक रिफंडेबल अमाउंट, राइट. सो वो काउंट करने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 15% is the gross margin that you would get. This of course is our weighted average gross margin, जो 3-4-5 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, सब में अलग अलग मार्जिन हैं, वो डिस्कस करेंगे हम इन आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग. बट ऑन एन एवरेज एक 15% का ग्रॉस मार्जिन इसमें पॉसिबल है, विच मीन्स ऑन अ सेल ऑफ अबाउट 30 लाख रुपीज़ आपको 4.5 लाख रुपए का महीने का ग्रॉस मार्जिन मिलता है. ठीक है जी. उसके बेसिस पर अगर आप देखें तो आपका रेंट, स्टाफ, यूटिलिटीज एंड ये सब कॉस्टिंग निकालने के बाद इजीली 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीना आप बचा सकते हैं अपने बिजनेस में, विच मीन 16 to 18 लाख रुपीज एनुअल नेट अर्निंग इज पॉसिबल, राइट. और उसके हिसाब अंडर 2 years दिस 30 लाख रुपीज पहले 2 साल में आप रिकवर कर लेंगे. ठीक है जी. 400 स्क्वायर फीट मॉडल,
30 lakh rupees investment, 15% gross margin, and on a sale of about 30 lakh rupees monthly, आपका within 2 years ROI easily निकल जाता है। ये सेल नंबर्स भी हम जो प्रपोज कर रहे हैं 30 लाख रुपीस मंथली सेल्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं है और इजीली कंपनी अचीव कर रही है इससे ज़्यादा नंबर्स। एंड ये हमने करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये नंबर्स वी हैव अज्यूम्ड। तो इस तरह से ये लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स की शॉप दिखती है। जो आपका फ्रेंचाइजी स्टोर बनेगा उसमें इस तरह से ये आपका स्टोर फेशिया साइन बोर्ड इस तरह से लगता है। Some critical support functions, registration and procurement of equipment and everything, then selection of location, कौन सी लोकेशन आपके लिए feasible होगी, वो कंपनी अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से, उनकी ऑपरेशंस टीम आपके साथ काम करती है, आपको सही लोकेशन चूज करने में हेल्प करती है। एंड देन थर्ड पार्ट इज इक्विपमेंट एंड स्टॉक। तो स्टोर में आपके जो भी इक्विपमेंट लगना है, स्टॉक लगना है, वो डिपेंडिंग कि आपकी मार्केट में किस तरह से कस्टमर प्रोफाइल है, क्या इनकम लेवल्स है, उसके एनालिसिस के बेसिस पे कंपनी आपका स्टॉक मिक्स तैयार करती है और फिर वो आपके स्टोर में लाया जाता है ताकि आपकी डे 1 से एक ऑप्टिमम सेल्स शुरू हो, आपका कोई भी स्टॉक डेड ना हो और यू नो so you start getting sales from day 1 itself, right? And then third part is very important is staff. आपको JDs, KRAs for each staff वो शेयर किया जाएगा। उसके बाद स्टाफ की रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो। सो वो पूरा प्रोसेस हमने डिफाइन किया हुआ है जो कंपनी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये इस तरह से एक प्री ओपनिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज विद बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, सो इस तरह से ये भी हमारी एक मार्केटिंग एक्टिविटी, एक सपोर्ट रहती है अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 मेडिकल स्टोर अब आपके शहर में भी, सो सेम कम्युनिकेशन विद योर स्टोर एड्रेस एंड एवरीथिंग वो कंपनी करेगी। फ्रेंचाइजी सक्सेस फैक्टर्स, सप्लाई चेन एफिशिएंसी जो कंपनी अपने एंड से पूरा मेंटेन करती है, प्रोडक्ट सप्लाईज ऑल कैटेगरीज, कंपनी के अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जहां से आपको यू नो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर सेल्स वो स्टॉक सप्लाईज मेंटेन करेगी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सीमलेस स्टोर ऑपरेशंस। जैसे मैंने बताया कि आपके स्टाफ को हर पॉइंट पर ट्रेनिंग दी जाएगी, यू नो कस्टमर इंटरेक्शन, प्रोडक्ट बिलिंग, मार्केटिंग। सो वो पूरी ट्रेनिंग की वजह से आप बहुत ही इजीली ये स्टोर ऑपरेट कर पाएंगे और बहुत एफिशिएंटली ये स्टोर ऑपरेट कर पाएंगे। सो यू आर एबल टू यू नो मैनेज योर कॉस्ट्स ऑल्सो, एंड जो 15% ग्रॉस मार्जिन आपको मिलता है उसमें बहुत एफिशिएंटली आप उसको मैनेज कर पाएंगे, राइट? कस्टमर कनेक्ट एंड इनसाइट्स, सो थर्ड एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कंपनी आपको सपोर्ट करती है कि कस्टमर से कैसे आपने बात करनी है, कस्टमर डीलिंग कैसे हो, इंटरेक्शन कैसे हो। जब होम डिलीवरी के लिए आपका स्टाफ जाता है तो उनका कस्टमर से टच पॉइंट कैसे होना चाहिए, क्या डिस्कशन होनी चाहिए, सो वो पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप अपने सेंट्रल पॉस सिस्टम में जो डेटा आप डालेंगे उसके बेसिस पर भी कंपनी अपना एनालिसिस करती है, प्लस आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स, कुछ प्रमोशनल स्कीम्स, सो वो सब कंपनी एंड से आपको एक ऑफर सपोर्ट मिलता है, राइट? सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाई चेन, जो कंपनी पूरा मैनेज करेगी बैकएंड से अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से। सेकंड इज सीमलेस स्टोर ऑपरेशंस, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, कस्टमर कनेक्ट एंड योर इनसाइट्स। इनसाइट्स मीन्स किस तरह से मार्केटिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रमोशनल स्कीम्स क्या हों जिससे आपकी सेल्स इंप्रूव हो, राइट? तो ये तीनों एस्पेक्ट से कंपनी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। एंड देन ऑफ कोर्स कंपनी का अपना फ्रेंचाइज मैनेजमेंट टीम स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड अदर टीम्स।
तो पूरा एक टीम स्ट्रक्चर कंपनी का कॉर्पोरेट टीम स्ट्रक्चर है जो आपके साथ एज पर द रिक्वायरमेंट वो एंगेज होंगे और आपको हेल्प करेंगे, राइट। सो ऑपरेशंस टीम है, ट्रेनिंग टीम है, मार्केटिंग टीम है, एंड देन अदर टीम्स लाइक ऑडिट, MIS, फाइनेंस, अकाउंट्स, वेंडर्स। सो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कंपनी के पास जो आपको पॉइंट टू पॉइंट हेल्प करेगा, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑन दिस प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोग लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के बारे में अच्छे से समझ पाए हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगेन आई विल से सेंट्रल इंडिया, इफ यू सी, डेंसिटी ऑफ फार्मेसी स्टोर्स बहुत कम है आज की डेट में, और जैसे जैसे सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया रीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है, प्लस इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रही हैं, देयर इज डिमांड फॉर ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी स्टोर्स। कस्टमर के लिए अगर आप देखें तो वो ब्रांड ट्रस्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर भी आज की डेट में ब्रांडेड स्टोर में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। सो दैट्स वेयर, एंड लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, इनके 50 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस पॉइंट्स, ब्रांड ट्रस्ट, ये सब बातें बहुत फेवर करती हैं लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को in terms of expanding and creating more and more stores in central India. That's the opportunity for you guys. Thank you very much. Thank you, Anshul. Vijay ji, you want to share something? आप कुछ share करना चाहेंगे on the presentation? आप mute पे हैं. Thank you, Gaurav. एक छोटा सा करेक्शन था फाइनेंशियल्स में। ग्रॉस मार्जिन विल बी 23% एंड 15% विल बी द नेट मार्जिन। If you have your own shop and no rental burden, then the net margin will be 15%. This was the correction I wanted to make. And if any questions are there, and then I would like to answer in details. Let me start with few understandings. So जो total investment है वो 35 लाख रुपीस की प्रेडिक्टेड है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, स्टॉक्स है, और जो बेसिक रन करने के लिए चाहिए होता है वो है, जिसमें फ्रीजर्स या रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है या स्टॉक होता है इसमें 35 लाख रुपीस में। और कितना हम जो स्टॉक है वो वर्किंग कैपिटल है, वो तो आप भी करते हैं और स्टॉक टर्नओवर भी, तो कितना हम इंटीरियर पे खर्चा जाता है और कितना हमारा उस पे जाता है। टोटल इंटीरियर एंड इक्विपमेंट कंप्यूटर कॉस्ट मिला के 4,83,000 है, एंड 20 लाख का स्टॉक्स हम लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि सारी मेडिसिन कस्टमर को एक जगह मिल जानी चाहिए, इसलिए स्टॉक हम हायर साइड में लेते हैं। 20 लाख ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो विजय जी ने कहा। जितने भी मैच्योर एस्टैब्लिश्ड फार्मेसी प्लेयर्स हैं उनके हमेशा आप देखेंगे उनके स्टॉक लेवल्स हमेशा हाई होते हैं। मैं हर वेबिनार में रिपीट करता हूं कि जो रिटेल सेल्स है वो स्टॉक टर्नओवर होती है। जितना आप स्टॉक लेवल मेंटेन करेंगे उतनी आप सेल्स अचीव कर पाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम फार्मेसी बिजनेस के अंदर है इस ड्रॉप सेल्स। लोग आते हैं, वो मेडिसिन मांगते हैं, उनको मेडिसिन मिलती नहीं, और हर डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है क्योंकि वो MR बहुत पुश करते हैं अपनी अपनी। इस फार्मेसी के पास सबसे बड़ी स्टॉक लेवल कलेक्शन होती हैं। They are normally preferred by almost every doctor. So if you have to bring in 100% availability of all the medicines, you need to keep the stock level higher. तो अगर आप इस बिजनेस को देखें 35 लाख रुपीस में से 15 लाख ही आपका केपेक्स है, उसमें से भी आपका डिपॉजिट है। एक्चुअली जो आपका केपेक्स है, जो केपेक्स इन्वेस्ट करते हैं वो 4,83,000 ओनली है। बाकी आपका वर्किंग कैपिटल है जो स्टॉक टर्नओवर में है, जिसमें आपका रिस्क नहीं है। तो फार्मेसी बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये समझना है कि आपका जो रिस्क कैपिटल है, जो आपने रिस्क डाला और स्टफ डाला है, वो 4,83,000 है। बाकी कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस के अंदर। दैट इज अगेन वर्किंग कैपिटल, जिसकी लिक्विडिटी कभी भी हो सकती है। तो ये बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे अलग बिजनेसेस आप देखेंगे, अगर आप फैशन लें या कोई और चीज लें, तो उसमें आपका स्टॉक रिस्क बहुत बड़ा होता है। Another question I have is a lot of people asking, how do you track the expiry or the aging of the product? Yeah, Gaurav ji, we have a very efficient software. Centralized software is there. एक एडमिन पैनल है हमारे पास में, सारी ब्रांचेस हमारे एडमिन पैनल से कनेक्टेड रहती है,
ब्रांच में स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत अच्छे प्रोविजंस दिए हुए हैं. वी कैन ट्रैक द एक्सपायरी इवन 3 months प्रायर. जो 3 महीने बाद भी प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं उसकी हम लिस्ट निकाल सकते हैं और उसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं, हम किसी और ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन हेड ऑफिस को रिटर्न भी कर सकते हैं. तो यूजुअली एक्सपायर होने के पहले ही हम प्रोडक्ट को लिक्विडेट कर देते हैं. बहुत नॉमिनल एक्सपायरी टोटल हमारे पास आती है. दैट टू इज रिप्लेसेबल बाय द कंपनीज जो एक्सपायर गुड्स हैं उसको रिप्लेसमेंट भी देती है, सर्टेनली मार्जिन काट के और कुछ परसेंटेज डिडक्ट करके, पर एक्सपायरी भी 95% एक्सपायरी सेटल हो जाती है. ये सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सपायरी के लिए जो पॉइंट ऑफ परचेज टू पॉइंट ऑफ सेल जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या खरीदा, किस एजिंग में पड़ा है, और उसके लिए इनके पास डेवलप सॉफ्टवेयर है. बिकॉज ये बहुत मेच्योर 5 डेकेड ओल्ड ऑपरेशन है. मतलब इंडिया के अंदर ऐसी कितनी फार्मेसी कंपनीज होंगी जो 5 डेकेड से ज्यादा होंगी. बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपायरी इज मिनिमम done, and there also the correction comes from the company. So hope Sunil Mehra ji, I think we were able to answer your question. Gaurav, I would like to add another thing. 4,83,000 में 1,15,000 रुपए सिर्फ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है. सॉफ्टवेयर हमने ऐसा सोफिस्टिकेटेड डेवलप करवाया हुआ है कि उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, पर उसमें ये सारी फैसिलिटीज हमको मिल जाती है कि मिनिमल एक्सपायरी में हमारा काम हो जाता है. Absolutely, and फार्मेसी के SKU होते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर ड्रिवन नहीं हो तो आप सेल्स नहीं कर पाते. आई नो लॉट ऑफ फार्मेसी जो इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज करने शुरू करती हैं, उनकी सबसे बड़े फ्रेंचाइजीज की कंप्लेंट्स ये हैं कि वो स्टॉक मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते. या तो उनका वो स्टॉक अवेलेबल नहीं होता जिसकी डिमांड क्रिएशन होती है, या वो एडिक्वेट सप्लाई चेन टाइमलाइंस नहीं मैनेज कर पाते, या फिर उनको पता नहीं होता कि उनके पास उनके स्टोर में वो स्टॉक पड़ा है. फार्मेसी इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है कि आपके स्टोर में भी स्टॉक है लेकिन तब भी आप डिस्कवर नहीं कर पाते अनलेस एंड अनटिल यू आर बैक्ड विद अ वेरी वेरी स्ट्रांग software management. So this has to be a very good investment to have that kind of investment. 1.25 lakh rupees for a software. It's, I think, the most useful investment for running a pharmacy business, because pharmacy is all about a phenomenal amount of SKU management. It looks like a 300-400 square feet store, but is actually carrying a phenomenal amount of एक departmental store में SKU होते हैं, उससे ज़्यादा SKU इसमें available होते हैं. ये it's a very very complex SKU management structure. Now, you have been a great history, great legacy. Vijay ji, आज आप जो franchise कर रहे हैं, obviously you have the great experience and structure. तो आज हमें ज़्यादा expansion किन markets में देखनी है, और because you have also said that you are open for conversion franchise, कि कोई चलता pharmacy हो उसको भी हम convert कर सकते हैं, और तो इसके ऊपर you want to share anything on that? Yeah, definitely. देखिए, हम इन एंड अराउंड छत्तीसगढ़, हम देखिए फार्मेसी के लिए सबसे जरूरी चीज़ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बैकएंड का वर्क बहुत पुख्ता होना बहुत जरूरी है. तो मेरा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेयर हाउस मैंने डेवलप किया हुआ है रायपुर में, जो एंटायर छत्तीसगढ़ को कैटर कर सकता है. बिना बैकएंड के हम बाहर जाके नहीं करना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के बाहर जाके हम फ्रेंचाइजी अभी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे बैकएंड ऑपरेशन अभी डेवलप नहीं है. पर छत्तीसगढ़ में किसी भी सिटी में हम उसको बहुत अच्छे से कैटर करने की क्षमता हमारे पास डेवलप्ड है. और कोई अगर एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर एक्सक्यूज मी, तो उसको भी हम फ्रेंचाइजी देके और उसको हम ब्रांड भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉरी, एक्चुअली because they have a centralized supply chain and warehousing capability, which we call the distribution center. Because the distribution center is very sophisticatedly available in Chhattisgarh, so its opportunity is about building a strong cluster. And as I said, Chhattisgarh emerges to be a very phenomenal opportunity, both by under-penetrated pharmacy per capita is one of the lowest in Chhattisgarh. Second, the shift from unorganized to organized chain store, which anyway is India-wide big shift, 30% plus growth, which is happening on the pharmacy, because people trust now places where they can go and they can get genuine medicine. And also now with the technology coming in with integrated online ordering, direct to home delivery, a lot of these things which are becoming very, very strong is in that. So I have two more questions, Vijay ji, which is about the तो जो हमारा मिक्स है, आपने 23% हमें मेडिसिन कहा, कितना हमारे पास भी होता है, कितना और है, जैसे आज की डेट में मेडिकल इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया है. छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो घरों के अंदर बहुत जरूरत हो गई. जैसे आजकल ही ये जो कोविड की वजह
ऑक्सीजन मीटर है, ये चीज है. How much? What is our retail mix of current? 35% of the total sales comes from the OTC products, including general products and cosmetics and all those things. 65% comes from the purely pharma, surgical, and the home equipments. So surgical and home equipment is becoming a very big growing category. Very growing category, and in particular this COVID period, they are contributing almost to 50% of the sale. But that is temporary for these 3-4 months. But I can tell you, I've been reading a report which is by KPMG that this equipment business would continue to rise. Yeah, Home definitely health it's good. आने वाले टाइम में इन्फेक्शियस डिजीजेस को देखते हुए और किस तरह की प्रिकॉशंस आपको चाहिए, होम हेल्थ केयर वुड बिकम अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. एंड इसके अंदर फार्मेसीज सबसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए हो आपने होम केयर में, स्पेशली एट अ प्रिवेंटिव और अ क्यूरेटिव और इवन वेलनेस प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ा होम हेल्थ केयर इक्विपमेंट कैटेगरी इमर्ज कर रहा है. एक और कैटेगरी बहुत इमर्ज करेगा जो है इक्विपमेंट रेंटल. जैसे आज की डेट में हर आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर घर में चाहिए या चाहिए, अभी तो शॉर्टेज है, लेकिन इवेंचुअली अगर ये अपॉर्चुनिटी हो तो ये बहुत बड़ी रेंटल अपॉर्चुनिटी है. Are we also looking to expand into this category? Yeah, definitely. That is in our plan. Looking at this particularly COVID situations, अब हम प्लान कर रहे हैं कि इक्विपमेंट का एक पूरा सेट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेट, उसको हम बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो शॉर्टेज है तो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ही जल्दी उसका हम एक डिवीजन चालू करने वाले हैं इक्विपमेंट रेंटल का. साथ में हम करेंगे कि ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ वो भी हम उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. बहुत सारे पेशेंट जो होम बेड रिडन है या जिनको होम केयर की जरूरत पड़ती है, तो ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ का भी एक सेगमेंट हम उसमें ऐड करने वाले हैं along with the equipment rental. It is a great opportunity in state of Chhattisgarh. If any particular city you want to start with them, you can have a retail business, you can have a direct to home business, you can have a equipment rental business, and you can also do nursing at home, which is home healthcare services, which is a very very big segment. I particularly feel that one of the most growing segment currently, with looking at environments next 2 to 3 years, is healthcare to homes, and that opportunity is very big. Another area which somebody's asked is about the training of people, because while we have a pharmacist license, but in the store, what kind of training they go through, and is there a scheduled training which you do? This was a question I was waiting for. देखिए, फार्मेसी का जब बिजनेस सेटअप करने की बात आती है तो आदमी सबसे पहले झिझकता है कि भाई क्वालिफाइड स्टाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइसेंस मुझको कैसे मिल पाएगा, किस तरीके से मैं उसको चालू कर सकता हूँ. तो ये जो हमारी एक्सपर्टीज है इसमें 50 साल की, वो यही है कि लाइसेंसिंग तो बहुत इजी है कि लाइसेंसिंग, फार्मासिस्ट हायर करना, ये सारी चीजें हम उनको अवेलेबल कराते हैं. इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि हम स्टाफ की जो ट्रेनिंग देते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग है, हमारे पे ट्रेनर्स हैं, जो स्टाफ की ट्रेनिंग है, साल में 12 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी हर स्टाफ के लिए, चाहे वो पुराना स्टाफ हो चाहे नया स्टाफ हो. जो नया रिक्रूटमेंट है वो 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही ज्वाइन कर पाता है, और जो हर साल उसको 12 दिन की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, उसका प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ है. वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है और उसके ट्रेनर्स हमारे बहुत वेल क्वालिफाइड हैं. तो हमारे यहाँ का जो ट्रेंड स्टाफ है वो किसी भी फार्मेसी को सिंगल हैंडेडली हैंडल करने के लिए बहुत ही क्वालिफाइड होता है और ट्रेंड होता है उसका. वो हमारा जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज दे सकेंगे कि मार्जिन कम ज्यादा तो किसी भी फ्रेंचाइजी से उनको मिल जाएगा, पर स्टाफ की ट्रेनिंग और क्वालिफाइड स्टाफ को छांट के और एलिजिबल स्टाफ को उनको देना, वो हमारा सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन है. Sure. So this is very, very important, and I have not heard. We manage Franchise India has managed all pharmacy chains in India, but I have not seen people having a very big focus as they have for 12-day compulsory training for a staff. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट नए इंट्रोड्यूस होते हैं, नई मेडिसिन आती हैं, नए ब्रांड्स आते हैं, और वो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड ए पर्टिकुलर सीजन, ये ट्रेनिंग रेगुलर देना बहुत जरूरी है. 12 दिन की ट्रेनिंग आई डोंट थिंक एनीबडी इन द कंट्री इज ऑफरिंग today. So it shows that they are a very responsible company. They are not just here to do franchising. 50 साल पुरानी कंपनी है, अब फ्रेंचाइजिंग कर रही है, लेकिन इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ी कैपेबिलिटी डेवलप की है, तभी ये कर पा रहे हैं. One more question I will take is that there are a lot of discounting in the market today. A lot of companies are coming in.
what is your stand on that? How do you think the discounting, is it sustainable? और अगर वो sustainable नहीं है तो हम कैसे इनको compete कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी सिर्फ डिस्काउंट बेस्ड पे ही अपने बिजनेस को चलाना चाह रही है. Discounting is not going to sustain in any market. You have seen in other businesses also. Initially market penetration के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं, बिजनेस के एक साइजेबल बना के उसको बेच के निकल जाते हैं. तो बिजनेस कभी भी लॉन्ग रन पे सक्सेसफुल होता नहीं है. उसको जो हम काउंटर कर पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो अगेन वही चीजें कि सारी सही सभी दवाएं मिलनी चाहिए. रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. कस्टमर नहीं चाहता कि एक एक प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं 4 दुकानों में घूमूं और उसको मैं कलेक्ट करूं, पार्किंग की तकलीफ और ये सारी चीजें. इवन जो ऑनलाइन के भी जो डिस्काउंट्स है, ऑनलाइन में एक बहुत लिमिटेड तबका जो क्रॉनिक डिसीज है, डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर मंथली मेडिसिन लगती है और जो फिक्स हो चुकी है, वो एक बहुत लिमिटेड तबका डिस्काउंट के चक्कर में ऑनलाइन फार्मेसीज की तरफ जाता है. अदरवाइज डॉक्टर के यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके सबसे पहले आदमी फार्मेसी में जाता है, फिजिकल फार्मेसी, और वहां से दवा खरीदता है. दवा खरीदते समय उसके दिमाग में दो चीजें रहती है. एक तो सारी दवाएं मुझको मिल जाए, दूसरी जो मैं दवाइयां ले रहा हूँ और भरोसा होनी चाहिए कि जिनाई कोई फेक ना हो, काउंटरफिट ना हो, कोई मुझको उसका सब्स्टिट्यूट ना पकड़ा दे. हमारे यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट रूल है कि हम सभी नेवर सब्स्टिट्यूट, चाहे कितने भी मार्जिन ज्यादा हो या कम हो, वी नेवर सब्स्टिट्यूट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एट एनी कॉस्ट. और जो हमको डिफीट करने का तरीका समझ में आता है कि एक तो रेंज हम मेंटेन करते हैं, दूसरी हम जिनाइन उसको एक रिलायबिलिटी देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको जिनाइन मेडिसिन मिलेगी. ये हमारी दो चीजें जिससे हम आज तक अपनी सिटी में तो डिस्काउंट को काउंटर करने में कामयाब रहे. Absolutely, and this And we are continuously growing. A huge confidence from the doctor community, because सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है वो डॉक्टर है. अगर आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर करके कुछ और बेचने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म he doesn't want to promote you. So it's not that a lot of people say that doctors take commissions and they only promote you. Actually, no. Doctors want that whatever they prescribe has to be followed, because they are the influencer on that. If somebody is genuinely doing that, they would go out and actually encourage. ये एक मिथ क्रिएट किया गया मार्केट के अंदर कि डॉक्टर्स ऐसे रिकमेंड करते हैं. डॉक्टर्स ये वो टाइम चला गया कि डॉक्टर्स ऐसे रिकमेंड करते थे. आज डॉक्टर्स चाहते ये हैं कि जहां पर भी वो रिकमेंड करें, जो भी मेडिसिन वो दें, वो एक पर्टिकुलर शॉप पे पेशेंट को मिल पाए. दैट्स व्हाई दे वुड एनकरेज टू एक्चुअली रिकमेंड क्वालिटी ऑपरेटर्स देन people who are not quality operators. So one more question I will take, which comes from our partner in Raipur. रमन जी हैं हमारे, जो देखते हैं फ्रेंचाइज इंडिया के ऑपरेशंस को रायपुर के अंदर, बहुत सीनियर पार्टनर हैं. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन से सिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं टू गो टू इन छत्तीसगढ़. आर वी ऑल्सो लुकिंग एट स्मॉलर विच आर tier 4-5 सिटीज ऑल्सो? क्या वो अपॉर्चुनिटी है और उसके हम मॉडल छोटा बनाएंगे या 35 लाख वाला ही मॉडल कर पाएंगे? Definitely, any township which is above 50,000 population, we will go there. A lot of cities nearby Raipur, so many cities are Avanpur, Mandirasor, Arang, Namtari, nearby Raigad, Korba, Bilai, Bilaspur. So many cities are there. We can go and we can cater them all. We have the capacity to cater the entire Chhattisgarh. We are looking for the cities which are having more population more than 50,000. So Raman ji, this is a great opportunity for your office, because आप छत्तीसगढ़ को पूरा देखते हैं, तो it is a great opportunity कि हम ये सारे cities को map करके we are able to find high quality partners in that franchise. So over to you, Sonia, for your questions which you want to take. Thank you, Vijay. I'll pick some questions from the investors who have asked. And before that, एक जो मैं question लेना चाहती थी, this was on, I think you talked about the overall margins. आपने जो बात की है, this is about 25% that you offer, and जो आपका net margin रहता है 15% है. And we also talked about some categories. आपने OTC and branded medicines की बात की है. अगर आप बता भी सके, against all these categories जो भी हम inventory रखते हैं अपने outlet पे, on an average हमारा हर एक category के ऊपर क्या margins रहते हैं? कुछ पे कम रहेंगे, कुछ पे हमारे ज्यादा मार्जिन्स रहते हैं. तो हाँ जी, जो जनरल प्रोडक्ट्स एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, they come in between 8 to 12% of the margins. Pharma products will go from 18 to 24% of the margins, and the generic will go to 50 to 70%. It will fall in between 50 to 70%. The same goes with the surgical also 50 to 70% margin is there. So overall अगर हम देखें तो 23% का मार्जिन डेफिनेटली बैठता है.
23% में अगर शॉप अपनी खुद की है तो टोटल एक्सपेंसेस आपके 8% के आते हैं, 15% नेट मार्जिन बढ़ जाता है। That's helpful. And इसमें अगर हम जेनरिक मेडिसिन का सेल समझे ओवरऑल, इसमें कितना परसेंटेज ओवरऑल हमारा रहता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका जो भी? जेनरिक मेडिसिन अगेन डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कितना ट्रेंड है और कितना इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सेलिंग द जेनरिक प्रोडक्ट्स। हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के साथ साथ में इंसेंटिव्स भी देते हैं if they sell generic products. डेफिनेटली हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन को सब्स्टिट्यूट ना करें, बट बहुत सारे वॉक इन कस्टमर्स आते हैं जो अपनी तकलीफ बता के दवाइयाँ ले जाना चाहते हैं, उसमें हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि आप पुश करिए। अगर 5% की भी जेनरिक की सेल आ जाती है बिजनेस टोटल सेल में, अगर 5% की भी सेल आ जाती है तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में बहुत अच्छा शूट आ जाता है। राइट। That everything depends on the training of the staff. हाँ जी, एब्सोल्युटली। एंड दूसरा जो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी, हमने ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की बात की, दूसरा क्वेश्चन जो जनरली लोगों के पास आता है कि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो स्टाफ है, यू नीड ट्रेन स्टाफ। So I see 2-3 people in our audience asking what qualification do they need themselves, because some people don't come with a pharma background, and which is also not very important. So would you want to maybe clarify that doubt? Definitely, if यदि आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो that helps. बट आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से, तो भी आप फार्मा बिजनेस ओन कर सकते हैं। ओनर के लिए कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको जरूर चाहिए रहता है मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए, उसको आप हायर कर सकते हैं। एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहता है, एक सेल्स पर्सन रहता है जो रिक्वायर्ड चाहिए, और अपना पर्सनल जील होना चाहिए कि मुझको ये काम करना है। तो ये भी मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि हम एक शॉप खुलवा देते हैं, अपने स्टाफ बिठा के चला लेंगे, आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर इट अंटिल अनलेस कि आपके घर का कोई मेंबर उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बिना फार्मेसी सक्सेसफुल नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि वो घर का मेंबर जो है वो फार्मेसी बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर 12th पास भी है, घर का मेंबर है, तो वो फार्मेसी को ऑन कर सकता है। बट डेफिनेटली लाइसेंस लेने के लिए, उसको रन करने के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ता है। दैट वी विल हेल्प इन दैट। एंड जी एक और जो क्वेश्चन है फार्मासिस्ट को लेके, ये फुल टाइम, बिकॉज सम पीपल आज फुल टाइम चाहिए होता है आपको आउटलेट पे, कुछ लोग अगर एक्सटेंडेड आवर्स पे काम करते हैं, दे आल्सो कीप सम पार्ट टाइम फार्मासिस्ट। नहीं, दैट इज मैंडेटरी। बिना फार्मासिस्ट के आप मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। एक और जो क्वेश्चन विजय जी मैं लेना चाहती हूँ कन्वर्जन फ्रेंचाइजिंग के ऊपर है। जो हमने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात की, दैट इज अबाउट 35 लाख, जिसमें सारा आपका स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और बाकी आपका फ्रेंचाइज फीस है। अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन का भी कोई हमारा पैरामीटर्स हैं, कौन से फार्मेसी स्टोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट उनकी लगती है, बिकॉज उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुछ स्टॉक रहेगा उनके पास। Then अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कन्वर्शन कॉस्ट है, डेफिनेटली विल गो लुक फॉर द साइज। 400 स्क्वायर फीट मिनिमम साइज होनी चाहिए, 300 to 450 स्क्वायर फीट का। अगर उस प्राइस की शॉप है और ऑलरेडी चल रही है और स्टॉक्स उसके पास अवेलेबल है, then we will have to see the what quality and what quantity of the stocks they are having. Conversion cost will not be more than 2 lakh to 2.5 lakhs. फ्रंट फसाड चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हमारे लगाने पड़ेंगे और कंप्यूटर्स उनको अपने लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा देखना पड़ेगा कि स्टॉक कितना है उनके पास। If they are having sufficiently stock, then there is no cost of additional stocks. पर अगर उनके पास स्टॉक कम है तो लगभग 20 लाख की वैल्यू का स्टॉक लेने के लिए जो एडिशनल स्टॉक्स उनको डालने पड़ेंगे, वो कॉस्ट आएगी। एंड आई थिंक कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस जो मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, मैं वो भी लूंगी। एंड एक चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ, दिस वाज ऑन द टर्न अराउंड टाइम। जो भी हम अपना स्टॉक रिप्लेनिश करते हैं एक इन्वेंट्री एक आउटलेट पे, उसका हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या रहता है? 20 days में टर्न अराउंड हो जाता है। ओके। And Vijay ji, एक जो question है very specifically, this has come from one of our investors which I was seeing and I will take it up. I think Manjul Shrivastava from Bhopal MP. While आपने बताया है कि अभी छत्तीसगढ़ आप फोकस करना चाहते हैं, he was looking for an option. He says he has a valid wholesale license. He is interested in also stock and he can stock and also become a franchisee both. So is there an option जहाँ पे हम एक बड़ा partner अगर outside छत्तीसगढ़ हम देखना चाहते हैं, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी रखे, खुद भी ओन करे और आगे सब फ्रेंचाइज भी कर पाए? इज दैट एन ऑप्शन दैट यू वांट टू कंसीडर एट दिस स्टेज? That depends on the party कितनी कैपेबल है, क्या कितनी फोकस्ड है। If there is a good partner, we can go for it. But back end office and warehousing का जब तक अरेंजमेंट नहीं रहेगा,
तब तक किसी भी स्टेट में जाके एक या दो सिंगल फार्मेसी पर that is Right. not feasible at all. That will not be successful. Correct. But यदि कोई आता है कि वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी डेवलप करना चाहता है और ब्रांचेस भी डेवलप करना चाहता है and you want to become partner with us, then we can definitely go for it. Okay, I have another question which I'm seeing, and he's mentioned, I think it's Devanand Jethani. He's a 1300 square feet commercial space with a 80 feet wide road of area. And he's looking for an opportunity where, you know, one can combine not only a pharmacist, but also maybe services of a doctor. So while that location might not be something that we want to look at, but something like this, agar aisa koi format ko bada karna chahta hai, is that something that you would want to consider? That is feasible. That can be done. But only thing retail में सबसे बड़ा जो important रहती है वो location का. हाँ जी. Location अगर अच्छा है उनका, then we can go for it. And We can. अगर लोकेशन की हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी लोकेशंस आप एडवाइस करेंगे? एंड अपार्ट फ्रॉम 400 स्क्वायर फीट जो रिक्वायरमेंट आपने बताई, कोई फ्रंट फसाड, ऐसी कौन सी लोकेशंस है व्हिच वर्क वेल, एंड क्या रेंटल ऑन एन एवरेज होना चाहिए इन लोकेशंस का? डेफिनेटली कोई भी मेन मार्केट जहाँ फुटफॉल कस्टमर्स का अच्छा हो, वो लोकेशन सूटेबल रहती है फार्मेसी के लिए, कि वहाँ से फुटफॉल कस्टमर्स का ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए वहाँ पे. दूसरा फ्रंट फसाड मिनिमम 14 to 15 फीट का हम देखते हैं कि मिनिमम 14-15 फीट शॉप विजिबल होनी चाहिए. 400-500 स्क्वायर फीट का शॉप हो, दैट इज गुड इनफ फॉर दिस. एंड एक विजय जी, हमारा टर्म ओवरऑल क्या रहेगा पार्टनर के साथ? एंड द अदर वुड बी माय क्वेश्चन ऑन द रिन्यूअल टर्म. अगर एक टर्म एक्सपायर हो जाता है, उसके रिन्यूअल की हमारे क्या स्ट्रक्चर है? वी विल गो फॉर एग्रीमेंट ऑफ 3 years. 3 years. 3 years का टर्म रहेगा, उसके बाद रिन्यूएबल रहेगा. अगर पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, then we can continue. Okay, very helpful. जी, one last question which I want to pick. हमने overall जो sales की बात की है, that is close to about 30 odd lakhs monthly, which we are projecting. इसमें क्योंकि कोई ना कोई फार्मेसी स्टोर उस जगह पे चल रहा होगा, it takes time for people to convert and start using maybe a new store. तो ये कितना टाइम लगता है gestation का? It takes 3 to 6 months. 3 to 6 months. And दूसरा because हमारा जो lot of business would also be subscription based, जहाँ पे आपका regular subscribers हमारे आते हैं. तो अगर हम ओवरऑल सेल की बात करते हैं, स्पेशली मेडिसिन की, तो उसमें हमारा जो सेल रहता है वो कितना सब्सक्रिप्शन ड्रिवन रहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल सेल दैट वी डू इन एन आउटलेट इज कमिंग फ्रॉम आवर रेगुलर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर्स? Definitely more than 40%. एंड इसको बिल्ड करने के लिए आप कह रहे हैं कम से कम 3 से 6 महीने का आपका टाइम. Great. Thank you so much, Vijay ji. And I see some questions coming in. Friends, I see Mr. Rajinder Kumar. We'll send you the complete information. A lot of our friends at the webinar are asking for the presentation and also maybe detailed working on the financials. We'll reach out to all of you, send the information that you seek. And also in the coming week, we'll set up a call with Mr. Vijay and his team to take any questions that you might have over on the business model or the opportunity. So कोई दिन विजय जी जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं इस हफ्ते में, अगर हम अनाउंस करना चाहते हैं, और वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट डेट वी कैन. Friday will be good. Okay. So Friday would be 23rd, so which is about 2 days from now. Yeah, every Friday we can do that. Okay. So I think what we can do, we can have the first round of meetings on this coming Friday. We can book a slot with you, and we can communicate the same to our investors. And friends, we'll share all the information that you seek, and we have captured all your questions that have come in. Jitna ho saka humne, we have tried and picked up every question, and we also have a recording of this webinar which is on Facebook, because I see somebody who's asking questions which have been answered. अगर आपने कोई भी ऐसा part मिस किया है, you can go back on the Facebook page of Franchise India Brands, और आप ये recording दोबारा आप देख सकते हैं. And our teams will also reach out to you for the information that you seek before we line up call with the Mr. Vijay and his team. So before we close, Vijay ji, any message, कोई आपका last word message, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं? डेफिनेटली मेरे 2 चीज़ें रहेंगी. अगर आप अभी कोविड की सिचुएशन देख के कि मेडिसिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और चलती रहने में सवार होना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट. बट इफ यू आर कमिटेड टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद अ गुड ब्रांड एंड यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, देन ओनली यू थिंक अबाउट गोइंग फॉर इट. These are the 2 things I wanted to mention. And thank you for inviting me. Thank you, Sonia. Thank you, Gaurav. Thank you, Archana ji. Thank you, everybody. Thank you all the participants. Thank you, Vijay ji.
very, very important message Vijay has done. And not many people in the so many webinars we've done said that. Everybody sees a very short-term approach to business. It talks a lot about people who come with the background like Vijayji, 50 years a legacy of business, and he's given a very good message. Never choose a business which is just for a short term. Choose a business which is going to be your next 10, 15, 20 years horizon. That's the way business should be chosen. And it's a very good message, and especially for a lot of young people who sometimes become more opportunist. I think you should take this as a lesson from Vijayji that business needs that attention. He said one earlier point also that आपको business में बैठना पड़ेगा तभी business आपको कुछ देता है. There's nothing which is part-time available. And so thank you very much, Vijayji. Thanks for coming over the show. Really value your time because I know you're very busy in these days and taking time out for coming to our show. And we work with you closely to expand your legacy to other markets. Thank you. Thank you so much, Vijayji. Archana, over to you for your final comments. So thank you so much, Vijay sir, आज हमें join करने के लिए और आपकी business opportunity हमारे साथ share करने के लिए. Thank you so much, Anshul, for your help for this particular webinar. Gaurav sir and Sonia ma'am, thank you so much for joining us today. We would like to thank our dear participants who have spared time today for this webinar. Hope it was a great interactive session for each one of you. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We request each one of you to save this number in your phone book, because in coming days, we'll be sharing maximum information about different opportunities we are getting for you and different webinars. We have a line for each one of you. Do subscribe at a Facebook page and join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited. We have entire video library of each and every webinar we have done till now. Also join us at different social handles, information on your screen. Please join Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs, information on your screen. And tomorrow, under 300th edition of Business Opportunity Over Webinar series, we are inviting you to join us for Masala Ministry. That's the brand from Jaipur coming and talking about this opportunity for each one of you. So please do registration at same business hotline number so that tomorrow sharp 12 p.m. you can join us to understand another business opportunity for you and your family. Thank you so much once again for joining in today. Have a safe day. Thank you so much. Keep very good care of your health. Thank you, Vijay sir. Thank you. Thank you. 97176838838 on your phone. So we will send you a regular invites on that. You can WhatsApp just your information and little profile, and you will get invite from us. We are also launching a new series which starts on 22nd, which is 30 shows in 30 cities. Every day from 22nd, 7 o'clock in the evening, we'll take one city, we'll talk about the city opportunity, we'll talk about what is happening there, what kind of opportunities would work there, and also introduce some brands which would be available for city. So look out for your city, or you can join any of the webinars, 7 o'clock, 22nd, on the series starting for 30 days. Thank you very much. Thank you, friends.